So once again, very, very good evening to you all. Today we will be discussing about the ICT and media, which is a very important topic. And in the today we are living in the age of the information and technology. So it's a very important topic which is given in your UGC NET syllabus, as which the unit number I think 7, that ICT and media, which is very, very important. And related to these things, many of the questions are asked, and this important unit is not only in the paper 2, it also important in the paper 1 as well. So do not left any questions from the ICT and media, because it's very, very important, and we are using all technologies. We are using with the various tools which is now being upgraded with the AI, right? Even the Excel and Microsoft, each and everything is now being upgraded with the AI, right? That is artificial intelligence. So upcoming future is also of the AI, right? And the latest, you can, as you can say that जो हमारा कंप्यूटर्स का अलग अलग जनरेशन है, वी आर लिविंग इन द जनरेशन ऑफ एआई, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो इस चीज का ध्यान रखें. और आईसीटी एंड मीडिया से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होता है, इसको हम एनालाइज करेंगे एंड विल अंडरस्टैंड दैट कि आपको और क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है. ठीक है, तो it's very important, please focus it here. We are going to start the ICT and media classes, and that question number 1, it is here: the cloud computing is a system delivering the different types of the services over. ठीक है, बताइए. क्लाउड कंप्यूटिंग से आपको पता होगा, राइट? गूगल ड्राइव हम यूज करते हैं, वन ड्राइव यूज करते हैं, डिफरेंट थिंग्स आर वी use it, but this is the system that delivering the different type of services, right? That over on the internet, non-commercial space, identified network of the telephone, public, corporate. It's a none other non-cyber platforms. Everyone, चलिए जल्दी से बताएंगे. देखिए, क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा. थोड़ा सा टर्मिनोलॉजीज होती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है. चाहे एडोब प्रीमियर प्रो की भी बात कर ले, एडोब प्रीमियर प्रो भी अब क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर हो गया है. ठीक है, यहीं पे अगर 5 साल पहले बात करें, क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर नहीं था, राइट? आप जिस सॉफ्टवेयर जहां पे इंस्टॉल करेंगे, जहां पे काम करेंगे, उसी सिस्टम पे काम करेगा. दूसरे सिस्टम पे अगर आपको काम करना है तो वहां भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा. बट अब ऐसा कुछ नहीं है. यू कैन वर्क एनीवेयर फ्रॉम any systems, right? That is 24/7 cloud data backup. Yes, Neelam, that's you are right. So it's important, and that is internet, right? So cloud computing is the delivering of the computing services, that is server, storage, database, networking, software, analytics, intelligence, each and everything that over on the internet, which offer the faster innovations, flexible resources, and the economies of the scale, right? Surely very important this question it is. So you should understand that about the cloud computing. Now here it's the questions related to the software. You should be aware of the way many of the software Adobe InDesign that used in the radio documentaries, television drama production, blogs on the internet, it has been debated in a newspaper. Everyone, जल्दी से बताएंगे. तो सिर्फ आपको एडोब InDesign पूछा गया है, तो एडोब इलस्ट्रेटर भी पूछा जा सकता है आपको. एडोब से ही नहीं, बाकी दूसरे सॉफ्टवेयर भी आपसे पूछा जा सकता है, और ये यूज कहाँ होता है. तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर आप अगर आप ध्यान में रखेंगे तो अच्छा रहेगा, राइट? टुडे वी हैड अपलोडेड ऑन द यूट्यूब एक वीडियोस, आज हमने शॉर्ट्स अपलोड किए हैं. कैन एनीबडी नेम द टॉपिक, दैट विच टॉपिक विच वाज अपलोडेड ऑन द यूट्यूब ऑफिशियल related to the software? It was, right? Applications. Yes, that the mobile app for the editing, right? So ये सारे आपको एप्लीकेशन की एडिटिंग का इसलिए वीडियो बनाना पड़ा इस चीज को लेकर, क्योंकि एक बार 2 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं यूजीसी नेट एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द एडिटिंग एप्लीकेशन. ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आपको एडिटिंग एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए कि काइन मास्टर है आपके. एडोब का कौन सा है एप्लीकेशन में जहां पर हमने डिस्कस किया है, बताइए. एडोबी, what the name of the application which we had discussed? Adobe Premiere नहीं था, एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन की बात करेंगे तो if you had listened properly, yes, that is Adobe Rush. Very good, that is Adobe Rush, Filmora. These all are the video editing applications which we had tried to show you there, so that you can remember the name of the video editing software, right? So that you have to understand and memorize that what are that software that used in where. Okay, चलिए. चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ द 3 C's ऑफ द कन्वर्जेंस. कन्वर्जेंस का 3 C's आपको एक अरेंज करना है. यस,
Very good. One more important thing, as Neelam has suggested also, because I think she has analyzed the previous year question as well. So she is suggesting to you all, and you should pay attention in the chat box as well, that she is saying that, sir, Pro Tool and Quark Express is also an important software which has been asked in the UG Senate exam as well, right? So you should know important of these things, that what are the other software which used in the designing, right? So that it is about the Pro Tool and Quark Express, right? So list of the related software, please make it. It's very, very important to understand that what it's using. Okay. Are you getting my point? What I'm trying to say, everyone? सॉफ्टवेयर रिलेटेड चीजें आपसे पूछी जाती है, सॉफ्टवेयर को आप ध्यान में रखेंगे, लिस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर, ठीक है, टॉपिक बना लीजिए, ठीक है। लास्ट में हम एक डिस्कस करेंगे, राइट, व्हेन द 10 मिनट्स और 5 मिनट्स विल बी लेफ्ट, विल बी डिस्कस दैट व्हाट आर द टॉपिक्स दैट वी हैड टोल्ड यू टू गो थ्रू ऑन दिस, राइट। सो प्लीज नोट, मेक अ नोट, एक साथ साथ में नोट भी बनाते चलेंगे ताकि उस पर हम लोग काम कर पाए, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। तो चलिए एक नोट बना लेते हैं हम लोग, पहले पीछे के क्वेश्चंस में आते हैं। प्लीज एक टॉपिक लिख लीजिए, थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ लीजिएगा, थोड़ा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, एंड ट्राई टू मेक अ डिफरेंट क्विज एंड डिफरेंट क्वेश्चंस ऑन दिस, लाइक द व्हाट इज cloud computing, right? Number one. Okay, what is cloud computing? Number one. Number two, that is what are the different software used in the media industry, ठीक है, and what that use it, right? तो आप सॉफ्टवेयर एंड इट्स यूज एक टॉपिक बना सकते हैं, राइट, सॉफ्टवेयर एंड यूज। ओके, सो प्लीज मेक अ लिस्ट ऑफ दिस थिंग्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। देवेंद्र, प्लीज मेक अ लिस्ट ऑफ इट, नीलम एज वेल। सॉफ्टवेयर का आप एक बार जो है सारे टॉपिक्स का लिख लीजिए, जो मैं 2 टॉपिक्स आपको लिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए तीसरे क्वेश्चंस में हमने डिस्कस करेंगे, उसके बाद टॉपिक्स लिखेंगे। करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ द 3 C's कन्वर्जेंस: कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन, कंटेंट, कंप्यूटिंग, कंटेंट, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, कंटेंट, कंप्यूटिंग, कंटेंट, कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन। ओके, चलिए नीलम के लिए नंबर ऑफ द क्लासेस, ठीक है, नंबर ऑफ द क्लासेस पे भी हम आएंगे, आपसे बात करेंगे, डेफिनेटली विल टॉक टू यू ऑल, ठीक है, ऑन द नंबर ऑफ द क्लासेस एज वेल। चलिए बताइए, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ द 3 C's ऑफ द कन्वर्जेंस? यस, we had got the answer from you all, and the right answer it is here, that is D. Okay, that is, yes, computing, communication and the content, ये 3 C's of the convergence है, जिसको आईसीटी के अंदर आपको ध्यान में रखना है, दैट यू वर्क, जैसे हम कहते हैं ना कि इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट होता है, ठीक है। इन द सेम वे हेयर, दैट वी यूज टू डू ऑल these things in the ICTs, that is what the first, that is computing, right? We input all the datas, right? And that communication work as an process, ठीक है, इसको आप इस तरीके से याद रखिए, that is what मैं आपको बताऊं इस तरीके से, just wait, yes, yes, आप कंप्यूटिंग को क्या याद कीजिए, इनपुट, राइट, दैट इज प्रोसेस, और इसको आउटपुट, इस तरीके से याद रखिए, राइट। कंटेंट इज द किंग, राइट, कंटेंट क्या है, किंग है, दैट इज द मेन थिंग दैट हैज बिकम आउटपुट, ठीक है, एक आउटपुट निकल कर आता है कंटेंट, राइट, एंड दैट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड कंप्यूटिंग को आप सारा चीजें आप आईसीटी के अंदर, वेदर यू आर यूजिंग एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, एनीथिंग that you are using the technology to enter all the data, ठीक है, that is in the computer, and it is delivering. Like for an example, I have prepared my PPTs in the computer with the MS PowerPoint, right? That is what I had computing, that it is. And that communication, that is we are delivering the informations, और हम उसकी process की बात करते हैं, that it reflect designing and all, कि how it will looks and how it will appear, right, when the audience or readers will read, right? So you present the information in that way, that becomes a process, each and every graphics design elements, images, audio, video, each and everything that which communicates with the computers and with the audience as well. The last thing, that is with the content, which becomes as an output. That is what the 3 C's of the convergence in which you have to remember. Are you getting all point of things, everyone? चलिए, सो इसको ध्यान में रखिएगा, 3 C's ऑफ कन्वर्जेंस एक टॉपिक ले लीजिए और इसको और डिटेल में पढ़िएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल और सीक्वेंस ऑफ द डिजिटल स्टोरेज डिवाइस, ठीक है।
स्टोरेज के टर्म्स में तो इम्पॉर्टेंट है ही, ठीक है। आपको दूसरे टर्म्स में भी आपको ध्यान में रखना है, दैट विल स्पीड जिसको बोलते हैं, राइट। स्टोरेज एंड स्पीड दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। स्टोरेज का मतलब कि ये कितना मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है इन इन सारे डिवाइसेस का, और स्पीड का मतलब कितनी फास्ट ये प्रोसेस करता है, ट्रांसफर करता है डेटास को, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ द डिजिटल स्टोरेज डिवाइसेस दैट यू हैव टू understand these things, that is DVD, floppy disk, CD-ROM, and the memory sticks. These all the options are given. These are the options. We have to choose the correct one, right? And the right answer that all of you had given as well, that is B. ठीक है। फ्लॉपी डिस्क अब यूज नहीं होता, बहुत ही एक टाइम था, राइट, उस टाइम पे यूज होता था। एंड डीवीडी हैज एन द लार्ज स्पेसिस, राइट, दैट इज इट इज मोर देन सीडी। सीडी में जहां तक आपको पता है, जब सीडी में एक फिल्में आती थी, ठीक है, वहीं पे डीवीडी में 4 5 10 फिल्में आ जाते थे, राइट। सो डेफिनेटली डीवीडी की जो स्टोरेज है वो सीडी से बड़ा ही होगी, ठीक है। तो ये जो है इसको तो आप क्रॉस कर दीजिए। सो बाय एलिमिनेशन टेक्निक्स यू कैन यूज इट एंड यू कैन यूज दिस थिंग्स, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क, then memory sticks, then CD-ROM, then DVD, right? In this way, and detailing of these things, it is given in the explanation as well. You can read it in more details, and more important, it is also that कि आपको फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक द सीडी इज द कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी इज द डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, रोम इज द रीड ओनली मेमोरी, रैम इज द रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो फुल फॉर्म या एब्रिविएशंस कहें, ये इंपॉर्टेंट होता है आईसीटी इन मीडिया में, ठीक है। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एज द हेयर चैट जीपीटी, ठीक है। चैट जीपीटी पूछ दिया गया आपसे क्या, कि ये कब लॉन्च हुआ, राइट। हो सकता है चैट जीपीटी से एक और क्वेश्चन पूछ दे और वो बता दिया जाए कि जीपीटी क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। सो दैट यू हैव टू नो इट, दैट व्हाट इज द जीपीटी हियर, राइट। सिमिलरली यू हैव टू आल्सो नो अंडरस्टैंड दैट कि आपके जीपीएस हम लोग यूज करते हैं, कि जीपीएस क्या होता है, राइट, दैट इज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। सो कहने का मतलब यही है कि राइट, कि आप जो है फुल फॉर्म एब्रिविएशन आईसीटी से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा याद कर लीजिए, क्योंकि पूछा जा सकता है, कई बार पूछे गए हैं आईसीटी के क्वेश्चन से एब्रिविएशंस, ठीक है। और एब्रिविएशंस आते हैं तो आईसीटी से मेजॉरिटी चांसेस है, ज्यादा है कि वो आईसीटी से ही चांसेस ज्यादा रहेंगे आपके एब्रिविएशंस के, ठीक है। तो जितने हैं, चाहे HTML हो, HTTP हो, ठीक है, ये सारे जितने क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ द थिंग्स आर गिवन, ठीक है। आप इंस्टाग्राम पे भी जाएंगे, राइट, इफ यू हैड फॉलोड द इंस्टाग्राम पेजेस एंड स्क्रॉल डाउन, ठीक है, बहुत स्क्रॉल नीचे जाएंगे तो शुरुआती दौर में हमने बहुत सारे एब्रिविएशन की सीरीज, लगभग लगभग 8 सीरीज जो है हमने पोस्ट किया हुआ है वहां पे भी। इवन ऑन द वेबसाइट एज वेल यू कैन फाइंड इट देयर, बट इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और वी विल शेयर द थिंग्स, ठीक है। यस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, इट इज मल्टीमीडिया is widely used to add the spatial to the movies, ठीक है। Arrangement, attachments, control, effects, everyone, multimedia, that is, yes, images, audio, video, text, each and everything that combines and give an effect to the audience, and that is form of multimedia, right. So different forms of media is used to add the spatial effects, right. So that is an important thing. So itni easy questions आपसे पूछ सकता है, right. So VFX 3D nowadays being used as an special effect in the movies and the animations, right. So it's an important thing that you should understand that what it is multimedia, and the special effects are, what are the special effects, that SFX that is called, VFX that is called, okay. So these things you have to understand, that what are these things, and you have to know it, okay. Chali. Digital divide is in the context of, digital divide is in the context of information haves and information have nots, access to the computers, access to the internet, and all the above, right. Digital divide किसको कहते हैं, ठीक है।
डिजिटल डिवाइड कहने का मतलब है कुछ लोगों के पास इंटरनेट है, कुछ लोगों के पास इंटरनेट है, भाई डिजिटली आप डिवाइड कर रहे हो, राइट। मतलब जिस तरीके से आप डिवीजन एक पढ़ाई लिखाई के बेसिस पे होती है, उसी तरीके से डिजिटल इंटरनेट की पहुंच नहीं है, वो इंटरनेट नहीं चला पा रहे, यूट्यूब नहीं चला पा रहे, सोशल मीडिया यूज नहीं कर रहे हैं। इवन उनके पास इंटरनेट पहुंचने तक का आप कह सकते हैं कि न कोई इंटरनेट पे किसी तरीके से वो कुछ ना सुन पा रहे हैं ना देख पा रहे हैं, राइट। सो दैट इज व्हाट द इंफॉर्मेशन हैव्स एंड इंफॉर्मेशन हैव नॉट्स। इसका मतलब इंटरनेट पहुंच नहीं है तो आपका जो समाचार है या न्यूज है या इंफॉर्मेशन है उन तक नहीं पहुंचेगी। तो कुछ लोगों के पास पहुंच रही, कुछ लोगों के पास नहीं पहुंच रही। दैट इज व्हाट इट इज द डिजिटल डिवाइड। एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ द कंप्यूटर एज वेल, राइट, कंप्यूटर इज ऑल्सो कम इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, कम इन अंडर द डिजिटल, राइट। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि मोबाइल फोन अगर उनके पास उपलब्ध नहीं है तो ये भी एक डिजिटल डिवाइड डिवाइड का एक इशू है। Same as and with the internet as well. So information as well. So each and everything that relates with the divide, right? So initiative to curb the gap of the rural digital divide and their accessibility as well. Yes, it's you are right. So this is an important thing. नीलम कह रही सर अंडरस्टैंड, ठीक है। देखिए क्या होता है ना कि शहर में अगर आप इंटरनेट के देखेंगे नीलम, कि इंटरनेट यूज करने वालों की तादाद जो है बहुत ज्यादा है, वहीं गांव में इसकी इंटरनेट वहां पे पहुंच नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पैसे नहीं, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो इंटरनेट वहां पे नहीं लोग यूज कर पा रहे हैं। सो दैट इज व्हाट द डिवीजन इज देयर, गैप है, बहुत गैप है, हम तक इंफॉर्मेशन पहुंच जा रही है क्योंकि हम लोग के पास जो है पर कैपिटल इनकम अच्छा है, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, शहर में रहते हैं, लेकिन गांव में वहीं पे आप जाओ तो लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं पता होता है। क्यों? क्योंकि उनके पास वो डिवाइस नहीं है, वो डिवाइस है तो इंटरनेट नहीं है। सो बहुत तरीके की समस्याएं होती है। दैट इज व्हाट क्रिएटिंग अ गैप बिटवीन द internet users and non-internet users, right, or the computer and without computers, right, that is what it called the digital divide. Chaliye, next we will be moving, and what a port is a, right, a port is a socket that enables the information to move in and out, hardware device that allows connection to the internet, peripheral device attached to the computer, or virtual memory location. बताइए। हाँ जी। सो पोर्ट क्या होता है? राइट, HDMI पोर्ट होता है, सी टाइप पोर्ट होता है, ठीक है। यस, लॉट ऑफ, यस, आपके डिवाइस में डेफिनेटली आप कंप्यूटर या लैपटॉप या कुछ भी चीज है, दैट देयर इज अ पोर्ट, देयर इज अ सॉकेट, राइट, which basically enabling that information in and out, right, that is you can pen drive as well, that USB port, ठीक है, HDMI port, right. So that is what in and out, that is HDMI in and HDMI out. So these things, that is basically a socket, or that enabling the information to move in and then out, right. So that is the more probably the answer it is A. But you if अगर आप B और C में देखेंगे, right, it's a basically kind डिवाइस नहीं है। पोर्ट एक डिवाइस नहीं होता, पोर्ट आपको दिया हुआ होता है, जहाँ पे आप लैन का पोर्ट होता है, ठीक है, HDMI का पोर्ट होता है, तरह तरह के पोर्ट होते हैं जो बेसिकली इंफॉर्मेशन को मूव इन एंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। चाहे वो पेन ड्राइव से करे, चाहे वो HDMI से करे, चाहे वो सी टाइप से करे, आप इंफॉर्मेशन को ही तो डिस्प्ले करते हैं या लेते हैं या फिर आउट करते हैं, राइट। सो दैट इज व्हाट इट इज अ ए। इट इज क्लियर एवरीवन? चलिए, ऑल राइट। इफ देयर कुछ, अगर किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप जरूर बताएंगे, राइट। डू नॉट कीप इन माइंड, प्लीज टेल। चलिए, द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन अ लैंड एंड वैन, लैंड और वैन में क्या प्राइमरी डिफरेंस है? ऑप्शंस आपके पास दिया हुआ है। नंबर ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स अवेलेबल, जियोग्राफिकल एरिया, वेराइटी ऑफ द हार्डवेयर डिवाइसेस, नंबर ऑफ द हार्डवेयर डिवाइसेस, एवरीवन। चलिए जल्दी से बताएंगे। यस, वेरी गुड।
सो राइट आंसर इट इज व्हाट, डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वैन। ठीक है, इससे लेकर क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। सो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि लैंड और वैन में क्या डिफरेंसेस है। लैंड बेसिकली a local area network in terms of the abbreviations which we can say, and the WAN that is wide area network, right? Yes. So LAN basically that connect users and application in close geographical area, where the WAN is basically आप कह सकते हो it is in terms of the large geographical areas, right? So that is basically on the basis of the geographical areas that it is a basically difference in, ठीक है। सो आप ऑफिस बिल्डिंग में अगर आप बताएं, ठीक है, अगर ऑफिस बिल्डिंग में आपके कोचिंग सेंटर में अगर यूज होता है, सो दैट इज बेसिकली यू कैन से दैट कि हाँ वहां पे लैन होता है, ठीक है, दैट इज बेसिकली लैन। एंड वैन आपका उससे भी बड़ा और उससे भी ज्योग्राफिकल एरियाज में यूज होता है, जहां पर आप कह सकते हो कि क्लाउड बेस्ड स्टोरेज के लिए यूज होता है, उस और भी बड़ी स्पेसेस के लिए यूज होता है, राइट, मोर वाइडर नेटवर्क। चलिए नेक्स्ट, डिजिटल डिवाइस हमने अच्छा ये देखिए, डिजिटल डिवाइस से एक और क्वेश्चन है लेकिन डिफरेंट एस्पेक्ट का क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। डिजिटल डिवाइड इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ जर्नलिज्म ट्रेनिंग, मास कम्युनिकेशन एजुकेशन, मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी, कम्युनिकेशन ट्रेनिंग। डिजिटल डिवाइड इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ, वेरी गुड, दैट इज मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी। ठीक है, मोर एप्रोप्रिएट आंसर, थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपकी क्लियर है डिजिटल डिवाइड क्या होता है तो आप इजिली आंसर कर पाएंगे, ठीक है। यस, कितने लोग मीडिया को लिटरेट, कितना लोग अच्छे से मीडिया को यूज करते हैं, मोबाइल को यूज करते हैं, ठीक है, पता है उनको कि मोबाइल को कैसे उपयोग करना है, ठीक है, पता है इंफॉर्मेशन कहाँ से प्राप्त होती है, मीडिया कैसे काम करता है, हाउ द मीडिया रन्स, हाउ मीडिया जनरेट रेवेन्यू, हाउ इफ यू आर एबल टू एक्सेस एनालाइज इवेल्युएट एंड क्रिएट द मीडियाज, राइट, जहाँ पे लोग जो है मीडिया को अच्छी तरीके से यूज करते हैं, दैट इज व्हाट दे आर लिटरेट, राइट। सो दैट द डिजिटल डिवाइड इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ द मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी, दैट हाउ मच द एरियाज आर लिटरेट and know about the medias, okay. Yes, Devendra has heard analyzed the two questions, right? Which was that in the last questions related to the digital divide, which was in the context of accessibility, right? एक accessibility को लेकर question था, and there is basically in the context of the use, ठीक है, कि किस तरह के context में आपको question पूछा जाता है डिजिटल डिवाइड, ठीक है। डिजिटल डिवाइड से दो questions आपने देख लिया, ठीक है। सो देखिए आईसीटी में जो है जो ज्यादातर रिपीटेड काइंड ऑफ टॉपिक जो है वो कन्वर्जेंस है, डिजिटल डिवाइड है, ठीक है, एब्रिविएशंस देख लीजिए, ठीक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देख लीजिए, ट्रेंड देख लीजिए। सो दिस ऑल आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, डिवाइस देख लीजिए, इनपुट आउटपुट देख लीजिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट्स इज नॉट ए वीडियो फाइल फॉर्मेट, या यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, फाइल फॉर्मेट, रिजोल्यूशन, एस्पेक्ट रेशियो, ये सारी चीजें आपसे आपको क्लियर होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। नॉट ओनली इन वीडियो फाइल फॉर्मेट, आप इमेज की फाइल फॉर्मेट, वीडियो की फाइल फॉर्मेट, रिजोल्यूशंस क्या है, एस्पेक्ट रेशियो क्या है, पिक्सल्स क्या है, डीपीआई क्या है। So is in these all are kind of the terminologies which used in the ICT that you have to know it, right? Yes, and that is what the right answer it is .jpg, which is a picture format, right? पिक्चर का फॉर्मेट होता है जो png होता है, jpeg होता है, ये सारे क्या है पिक्चर की फॉर्मेट हैं। वहीं पे .mp4, .mov, aw, this all are the format, right? So this is a very important things that you have to know it. So सिर्फ वीडियो की फॉर्मेट याद नहीं रखेंगे, बाकी के सारे फॉर्मेट भी याद रखेंगे, ठीक है। इट इज क्लियर। चलिए, SMTP इज एक्रोनिम फॉर, देखिए यहाँ पे एक आपको देखिए एब्रिविएशन पूछा, इसीलिए कहता हूँ कि एब्रिविएशन ज्यादा से ज्यादा याद कर लीजिए, आधा आईसीटी आपके मतलब 50, मैं कहूँ कि 50%
अगर आईसीटी में कुछ है तो वो एब्रिविएशन है। 30% अगर आईसीटी में कुछ है तो वो क्या है, टर्मिनोलॉजी है। मैं आपको ग्राफ बता रहा हूँ एनालाइज। 10% जो है आपका क्या है, आईसीटी में कुछ है तो वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो भी, ठीक है। और बाकी का 10% आप समझ लीजिए कि थोड़ा सा आपको काम करना है, पड़ना है, बस ये 3 चीज पे काम कीजिए, राइट, यू आर डन इन द आईसीटीज, दैट्स ऑल, ठीक है। एब्रिविएशन, टर्मिनोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और आपका 10% रिमेनिंग ऑल। सो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दैट द राइट आंसर, इट इज सी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इसमें क्या होता है, एसएमटीपी क्या होता है, मैं आपको बताऊं। एसएमटीपी वो होता है जैसे जब आप मेल करते हैं, राइट, जब आप मेल करते हैं और जब आप मेल रिसीव करते हैं, तो ये मेल जो भेजने का और रिसीव करने का जो काम होता है, ये एसएमटीपी करता है, राइट। इट इज अ काइंड ऑफ द प्रोटोकॉल हैविंग द गाइडलाइंस which allows the software to send through the internet, right, and receive through the internet, right. That is what it is basically, a kind of the program which has been used in the sending the messages and receiving the messages, which based on the email addresses, okay. So it is a SMTP, which is a simple mail transfer protocol, ठीक है। चलिए next question, it is here, the convenient place to store contact information for a quick retrieval in email is address box, message box, address book, message book। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द कन्वीनियंट प्लेस टू स्टोर कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन फॉर क्विक रिट्रीवल इन द ईमेल इज, आप कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन स्टोर करते हो बहुत ही अच्छा सुविधाजनक जगह, जहां पे आप कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हो इजी एक्सेस के लिए ईमेल के अंदर, एंड दैट इट इज व्हाट इट कॉल्ड, यस, वेरी गुड, ऑल ऑफ यू हैड गिवन, एंड दैट राइट आंसर इट इज एड्रेस बुक, ठीक है। आपको पता होगा, ठीक है, एड्रेस बुक अगर आपको नहीं पता तो आप एक बार ईमेल खोजिएगा, ईमेल खोलिएगा, और वहां पे आपने एड्रेस बुक देखिएगा जहां पे आप सारे कांटेक्ट को सेव करते हैं, ठीक है। आप यूज नहीं करते होंगे तो आपकी गलती है, राइट। अगर यूज नहीं करते हैं तो यूज करना शुरू कर दीजिए ताकि आपको समझ पाए, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली, यस, एड्रेस बुक विच इज अ डेटाबेस विच यूज फॉर द स्टोरिंग द एंट्रीज, लाइक जैसे आपके मोबाइल फोन में कॉन्टेक्ट सेव करते हैं, वैसे ही आप वहां पे आप नाम और ईमेल आईडी सेव करते हैं, विद द फोन नंबर बहुत सारी डिटेल भी आप सेव कर सकते हैं, राइट। दैट द प्लेस बेसिकली गिव यू टू स्टोर द कॉन्टेक्ट एंड कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, राइट। चलिए याद रहेगा एड्रेस बुक एवरीवन, ए आंसर नहीं करेंगे, चलिए ऑल राइट। A computer has a main memory of the 1960 KB bytes, kilobytes. What is the exact number of the bytes contained in this memory? Okay, 1960 किलोबाइट्स आपको दिया हुआ है। जब इसको आप सिर्फ बाइट्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितने बाइट्स होगा, ठीक है। यानी आपको अगर सीक्वेंस याद होगा तो आप ध्यान दिए होंगे, बाइट्स बिट्स होता है, उसके बाद बाइट्स होता है, उसके बाद किलो बाइट्स होता है, उसके बाद मेगा बाइट्स होता है, उसके बाद गीगा बाइट्स होता है, उसके बाद टेरा बाइट्स होता है। तो ये जो है ना आपको याद रखना पड़ेगा सीक्वेंस, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। और हाँ जी, सो यस, यू ऑल हैड आंसर एंड दैट राइट आंसर इट इज हियर। Who has answered D? गायत्री, how it would be possible, right? अगर बीट में कन्वर्ट करना होता तो एक बार के लिए हम कह भी सकते थे, लेकिन उसमें भी नहीं होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम कहते हैं बीट्स, उसके बाद बाइट्स, उसके बाद केबी, किलोबाइट्स जिसको बोलते हो, उसके बाद मेगाबाइट्स, उसके बाद गीगाबाइट्स, उसके बाद ये टेराबाइट्स। सो 1024 यानी 10224 KB इज इक्वल टू 1 MB, ठीक है।
Yes, 1024 MB equal to 1 GB. 1024 GB इक्वल टू 1 TB। ठीक है, तो इसी तरीके से बाकी आगे योगा बाइट्स, बहुत योटा बाइट्स वगैरह सारी चीजें होती है, उसको आप देख लीजिए। ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सी जो है आपको राइट आंसर 1024। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डैश डिनोट्स एन एरर इन द कंप्यूटिंग प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम में जो एरर होता है उसे आप क्या कहते हो? बग्स, वायरस, स्पैम, बीट। देखिए टर्मिनोलॉजीज है, इसको भी अगर आप कैटेगरी में काउंट करोगे तो ये टर्मिनोलॉजीज है। लास्ट वाला क्वेश्चन जो है आपका ये सब टर्मिनोलॉजीज में ही आता है आपके कि ये आपके सीक्वेंस टाइप क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है उससे में। ठीक है, तो एक हायरार्की याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। सो बग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लोग बग अब खोजने पे लोगों को इनाम मिल रहा है करोड़ों रुपए, राइट? आप गूगल का बग खोज लीजिए, ठीक है, आपको हाईलाइट हो जाएंगे और आपके पास आपके ऑफर भी आ जाएंगे। ठीक है, चलिए। अभी किसी ने एक्सप्लोर भी किया था, बग भी निकाला था। ठीक है, द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय डॉट्स पर सीएम, डॉट्स पर इंच, डॉट्स पर एमएम, डॉट्स पर इंच, सॉरी डिजिट्स पर इंच। हाँ जी, इसी को तो कहते हैं क्या? डीपीआई। ठीक है, डॉट्स पर इंच। 1 इंच में कितने डॉट्स हैं? और जितने ज्यादा डॉट्स होंगे उतने ज्यादा क्या होंगे? राइट, 1 इंच में जितने ज्यादा डॉट्स होंगे उससे क्या होगा? उसका उतना ही क्वालिटी इंक्रीज होगा। राइट, मोर मोर डॉट्स पर इंच, मोर क्वालिटी। right? Less dot per inch, less quality. So that is very important कि आउटपुट क्वालिटी जो प्रिंटर की है वो किस पे डिपेंड करती है? डीपीआई पे। और यही हमारा जो पिक्सल जिसको बोलते हैं, ज्यादा मोर नंबर ऑफ पिक्सल, हायर रिजोल्यूशंस, राइट? हायर रिजोल्यूशंस, बेटर क्वालिटी। और जरूरी नहीं है कि हायर जो रेजोल्यूशन हो वो बेटर क्वालिटीज हो। ठीक है, सो कभी कभी उसको प्रोड्यूस भी किया जाता है, लेकिन वो ध्यान दें कि उसमें पिक्सलेट कितने हैं। लाइक आपके 50 मेगापिक्सल के कैमरेज अगर हैं तो जरूरी नहीं कि वो 4 मेगापिक्सल के भी कैमरेज अच्छे हो सकते हैं, उससे क्वालिटी हो सकती है। तो डिपेंड्स अपॉन दैट हाउ मच डीपीआई एंड ऑल अदर क्रॉप सेंसर लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड बीइंग यूज्ड इन दैट। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट द क्वेश्चन, इट इज इंपॉर्टेंट इट हियर। अ स्मॉल टेक्स्ट list stored on the user's computer by the some website in order to recognize and keep track of the user preferences is called cookie, report, log, history. Everyone answer. एक कुकीज स्टोर हो जाती है, ठीक है, आपके कंप्यूटर पे, जिसके कारण फायदा क्या होता है कि जब आप दूसरी बार उसी वेबसाइट को ओपन करेंगे तो जल्दी खुल जाएगा। राइट, इट विल ओपन फास्ट if you open it again the same website. Okay, so that basically a small files which called cookies stored on your users, stored on the user's computer, right? So that is what it called, the cookies, okay, which keep track also of the user performance कि आप क्या देख रहे हैं, क्या पसंद कर रहे हैं, क्या डेटास को ट्रैक कर रहे हैं, सारी चीज पता चल जाता है। ठीक है, जो एडमिन होता है, क्लाइंट क्या यूज कर रहा है कंप्यूटर पे, और उसी तरीके के एडवर्टीजमेंट परोसना हमारे लिए आसान हो जाता है। राइट, सो दैट इज बेसिकली अ कुकीज विच स्टोर द इंफॉर्मेशन। चलिए, सो यस, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस। ठीक है, नीलम ने कहा था कि सर नंबर ऑफ द क्लासेस बढ़ाइए। ठीक है, नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ाएंगे। राइट, लिटिल बिट आई एम वेरी मच बिजी इन दिस 1 or 2 days इट इज मोर। ठीक है, 2 दिन और बचे हैं, कल और परसों। आई एम एंगेज्ड इन सम वेरियस अदर्स एक्टिविटीज। सो डेफिनेटली ये 2 दिन की क्लासेस आप थोड़ा सा टॉलरेट कर लीजिए, कॉपरेट कर लीजिए। 2 दिन के बाद क्लासेस, हम नंबर ऑफ द क्लासेस डेफिनेटली बढ़ाएंगे। राइट, डेफिनेटली वी विल इंक्रीज द नंबर ऑफ द क्लासेस।
right, as per your requirements, and we'll do it, right, just for the tomorrows and day after tomorrows, 2 days more, right? So thank you to all. Thank you so much. This was all about which you had understood about the basics of the ICT and media MCQ related questions which was in front of you. And keep on joining the classes, attending the classes. It will very much benefit to you, right? So thank you to all. Thank you so much. It will be uploaded on YouTube. You can share it there to your friends as well. Thank you once again. Thank you so much. Okay.